says, Psalm number 14, Bhajan Samhita 14. The fool says, there is no God. How you can connect this with Psalm number 13, 12 and 11? Because he prayed to God and always he need, because God is silent. That's why he can. So now you understood how you can connect each psalm. रमेश को समझ आया? हेडिंग में क्या लिखा? मूर्ख कहता है Oh. So in English, the fool says there is no God. For example, suffering का बीच में, मुसीबत का बीच में, if your spiritual eyes are blind, you will end up by saying परमेश्वर है ही नहीं, मैं छोड़ के. This you can connect when you preach. So who is that fool? I am. You can say I am. Read verse 1. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, they do abominable deeds. There is no one who does good. The Lord looks down from heaven on the children of men to see if there are any who understand, who seek after God. So it is very well connected to Psalm number 11, 12 and 13. Psalm number 14 is one of the most profound and theologically rich compositions in the Hebrew Psalter. इब्रानी भजनों में भजन संगीता 14 भी बहुत थियोलॉजिकली बहुत डीपली कुछ बातें इस भजन संगीता में भी है. It addresses the moral and spiritual corruption of humanity, the denial of God. The most important theme of this psalm is the one who is denying God. Denying is different. Without knowing, living is different. Deny means you know him, you you know his taste, you experience him. Later, you are denying for some reason. समझ आया? What meaning of the word denial? नहीं, आपको पता है ये कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, आज साइलेंट है, लेकिन उनके बारे में आप बहुत अच्छा से समझदार है तो वो साइलेंट है, आज कर कर उसको छोड़ के नहीं जाएगा. यू विल वेट. सो डिनाइल. सो साम नंबर 14 में डिनाइल एक मेन थीम है. वाई? बिकॉज आफ्टर नोइंग गॉड दे आर डिनाइंग गॉड. समझ आया? So connecting to Psalm number 11, 12, there were many faithful people. When suffering came, many denied God. समझ आया? समझ आया? This happened in the history of Israel. They denied God and they said, God, you forgot us. हमने ये पढ़े थे जोशुआ की किताब में. वो लोग परमेश्वर का भूल गया, यहोवा का भूल गया. Then they started giving complaints. परमेश्वर हमको आप क्यों भूल गया? समझ आया? सो डिनाइंग का मीनिंग समझ आया? The psalmist traditionally identified as David. प्रश्न क्यों ही वहां लिखा है to the choir master of David. The psalmist traditionally identified as David presents a lament over the pervasive wickedness of humankind and contrast it with the steadfastness of God's people and the hope of divine deliverance. So पूरा देश में, नेशन में ये बातें हो रहा है. So David is praying to God and he is asking God हमें बचाना. So here I think you will not find any personal pronoun. Kindly read. Is there any personal pronoun? नहीं है ना? एक भी नहीं है. है कहाँ? हाँ. Have they no knowledge, all the evil doers
who eat up my people as they eat bread and do not call upon the Lord. हिंदी पढ़िए। क्या किसी अलग कार्य को कुछ भी ध्यान नहीं रहता जो मेरे लोग को ऐसा खा जाते जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। So authorship we can confirm it with David, and the Davidic authorship aligns with the theme of moral decay, divine justice. So I will summarize this. David as a king, he saw in the society everything is happening in an immoral way. There is no justice, injustice, even the evil people eating the food of faithful people. Food मतलब उन लोगों को खाना लेकर खाने का नहीं, वो एक बोलने का एक तरीका है, मेटाफोर है। बुरा लोग अच्छा लोगों को बिगाड़ते सताव करते ही जा रहा है। इनको मिलने का चीज भी बुरे वाला लोग ही खाते जा रहा है। देन दे आर सेइंग परमेश्वर है ही नहीं, वो लोग फूल है इधर। दे आर सेइंग देयर इज नो गॉड। व्हाई? दे आर परसिक्यूटिंग द गुड पीपल एंड दे आर अंडर परसिक्यूशन। देयर इज नो वन इज प्रोटेक्टिंग देम। Then the foolish people, the attackers, they are saying परमेश्वर है ही नहीं, हम कुछ भी करके इन लोगों को लूट लेंगे। अभी समझ आया क्यों वहां लिखा the fool says there is no God। समझ आया? मतलब हमको सताने वाला लोग भी प्रेजेंट कॉलेज में भी क्या बोलेगा, ये यीशु मसीह परदेशी वाला वो है ही नहीं करके बोलते हैं ना, तुम लोग ऐसे विश्वास कर रहे हैं। अगर वो है तो हमने आप लोगों का 10 कलीसिया तोड़ दिया। वो आकर कुछ करना था, जैसा हमारा परमेश्वर लोग आकर उफ करने के समय कुछ होगा, उन लोगों का भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन बोल रहा हूं, पूछते हैं ना आज के जमाने में भी कुछ लोग हमसे, ये नहीं यीशु मसीह तू देखा, तू सुना? द सेम वे दोस आर परसिक्यूटिंग, दे आर सेइंग दिस एंड परसिक्यूटिंग। परमेश्वर ही नहीं, हम कुछ भी करके चलेंगे, हमको पूछने के लिए कोई नहीं होगा, ये लोग के तरफ से कोई मदद करने वाला नहीं होगा। That's why David is praying, and that is connected with 13 verse 4. That is connected with Psalm number 14 is connected with 13 verse 4. So what the enemy will say? 13 का 4 में क्या लिखा? क्या सोचेगा एनिमी लोग? हमको फुल फ्रीडम है, we are free, we have all freedom to persecute these people because there is no one is going to, because God is silent. That's why 13 verse 1 में उन्होंने पूछा कितना दिन आप चुपचाप, या कितना दिन आप हमको मुझे भूल जाएगा। So God is silent. Literary structure 1, 2, 3. It speaks about the corruption of human being. What is that corruption? They denied God. समझ आया? करप्शन का हिंदी भ्रष्टाचार। इधर भ्रष्टाचार मतलब वो पैसा लेना, ये बातें नहीं है। दे डिनाइड गॉड। पॉइंट नंबर 1, 4 to 6, डिनाउंसिएशन ऑफ विकेड एंड द ऑपरेशन ऑफ गॉड्स पीपल। विकेड पीपल परमेश्वर का लोगों को सताव कर रहा है, एंड दे आर सेइंग देयर इज नो गॉड। अगर गॉड है तो हम सताव करने के समय तुम लोग मदद करने के लिए, एंड इफ यू से आयुब से हमको बचाया, कहाँ आया अभी बचाने के लिए? नहीं आया, बिकॉज दे डोंट नो वन थिंग। मेनी टाइम्स द पीपल ऑफ इजराइल सफर्ड एंड द एनिमी केम, गॉड ओनली सेंड द एनिमी ऑल्सो। हमने पढ़ा था, याद है? बंधुआई में चला गई दूसरी बार, बबीलोन के राजा को सबको लेकर अटैक करने के लिए कौन लेके आया? वो लोग खुद आया। फिर गॉड ओनली, अरे आप लोग आता तो बताना। दूसरी बार बंधुआई में गया, बबीलोन का राजा लोग आकर वो खुद सोच में आकर कब्जा किया, या परमेश्वर ने भेजा? पक्का? So even when enemy comes to attack us, enemy is thinking उन्होंने उनकी प्लान में आ रहा है, but God says I only send even you। समझ आया? That's why when crucifixion, यीशु मसीह का क्रूसीकरण का समय में रोमी का लोग सोचा हम कर रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर का आने का प्लान में ही था।
है नहीं? इवन टुडे सफरिंग परसिक्यूशन, आप लोगों का वहां पास्टर लोगों को मारता है, कलीसिया को तोड़ता है, वो लोग क्या सोचता है? ये हम, बट व्हाट बाइबल सेज, दिस थिंग विल हैपन. सो व्हेन इट हैपन और व्हेन इट इज हैपनिंग, भविष्यवाणी पूरा हो रहा है हमारे लिए. उन लोगों के लिए क्या हो रहा है? इधर एक दादा आया था रविवार को, उन्होंने कलिसिया जाकर आराधना होने के बीच में मिट्टी सैंड लेके आकर ऐसा मारते थे आराधना को बिगाड़ने के लिए. एक दिन मारते 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 अब वो क्या बन गया? वो पास्टर बन गया. सो बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होगा. बाइबल सेज दैट इन द एंड डे देयर विल बी परसिक्यूशन, इट विल बी देयर, बट डोंट वरी, बी जस्ट लाइक दिस psalmist David. You can speak out of your anger or complain or petition, but in the end there is a confidence. क्या है confidence? So verse 7, a concluding expression of hope and divine deliverance and restoration. So in the same tune, ऊपर जितना भजन संगीता का ट्यूनिंग जैसा है, कंप्लेन से शुरू हुआ, कैसा अंत हुआ? There is a hope. My God will. Theological themes. The fool and the denial of God. Point number 1. If you are going to any church and if you know the context of that church, बहुत लोग विश्वास को छोड़ के चले जा रहे हैं, you can preach this psalm and you can say the fool will deny God because they did not understand the covenant relationship with God. So what is the theme number 1? Fool and denial. मूर्ख परमेश्वर को क्या देगा? डिनाइल का करेक्ट हिंदी, इनकार करेगा. पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्सल करप्शन. यूनिवर्सल करप्शन मीन्स करप्शन affected in all the areas on this earth. है नहीं? करप्शन इस दुनिया का सारी चीजों में इफेक्ट हुआ है. खाने में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कॉलेज में, हर जगह पे, इंक्लूडिंग इवन बाइबल कॉलेजेस में. टीचर से लड़ने वाला बाइबल कॉलेजेस है, आप लोगों को पता होगा. कॉलेज के अंदर ही 2 विभाजन है, एक कुछ लोग ये झुंड, कुछ लोग ये झुंड, वहां करप्शन. सो यूनिवर्सल करप्शन इज देयर इन दिस साम. देन पॉइंट नंबर 3, द ऑपरेशन ऑफ द राइचस. धर्मी व्यक्ति का जीवन में सताया जाता है. Then point number 4, hope for salvation. एक आशा है, उद्धार जरूर. Bringing it into present context, हमारा आशा कहाँ है? He will come for the second time. सब उनके साथ जीने के लिए हमारा आशा है नहीं? Linguistic and textual analysis. In this psalm you can see these verses which is there in the bracket. Fool, corrupt, the covenant, or you can see this name, fool and corrupt. So when you read this fool and corrupt, you have to understand who is this fool. For example, fool का हिंदी क्या है? कौन है मूर्ख? आप. So taking this word fool into the context of the psalm, who is the fool? The one who deny God is known as फूल, है नहीं? जानने के बाद उसको मुसीबत के बीच में छोड़ के जाने वाला लोगों को दर्शन करने के लिए या उसको उसके बारे में बताने के लिए इस भजन संगीता में फूल करके शब्द को यूज किया. समझ आया? लिटरेरी मतलब एनालिसिस में 2 बात है. देयर करप्शन. हियर व्हाट इज मीन बाय करप्शन? हियर मींस इन दिस साम करप्शन जो प्रभु से दूर हो रहे हैं, प्रभु के सामने में. There is no God. So in this psalm, the word corruption fit to the context where people already know Yahweh is our King, Yahweh is our Lord, but they are corrupted, going back of different other gods. So for example, होशे से शादी करने के लिए बोला था परमेश्वर, किससे?
वेश्या स्त्री से, वो किसको दर्शाते थे? एक परमेश्वर से प्रार्थना, एक पति से शादी कर दूसरी पास जाने वाला व्यक्ति के जैसा है इजराइल करके दिखाने के लिए परमेश्वर ने ये बातें बताया. So when God asked Hosea to go and marry an adulterous woman, it was portraying the situation of people of Israel. Even after knowing their God is Yahweh, they went and believed, they went back of other gods, kind of adultery, वेश्या का जैसा काम किया. So either corruption is they are corrupted even in their spiritual life. समझ आया? So whenever you see fool, corruption और कुछ कुछ शब्द है बाइबल के अंदर, उसका कॉन्टेक्स्ट दो तरीका में होता है. If I take and tell the word corruption today, corruption means what? Bribery. What is bribery? ये चीजों के लिए हम करप्शन करके यूज करते हैं. कुछ सरकारी कुछ काम चलना है तो क्या देना पड़ेगा? You have to give something. रिश्वत. Comparative analysis with Psalm number 53. I think Psalm number 14 has a connection with Psalm number 53. Read Psalm number 53. क्या है connection? वहाँ भी ऐसा ही है. Psalm number 53 भी. Okay, then that is the connection. Psalm number 53, Psalm number 14 शुरुआत सेम है. शुरुआत सेम है. वही है ना कनेक्शन. Then theological significance in the Old Testament. When you read this psalm, you can read something about anthropology. What is meant by anthropology? Study about man, a human being. So if you study about human being in the history of Israel, it happens even after knowing who God is, what we do? What we do? We will deny him, we will disobey him. Then theology of God. When you read this psalm, theology of God, or Psalm number 1 to 14, theology of God, he will love us, he will show his mercy, he will show his grace. At the same time, सेनाओं का हॉबी है. He is a righteous judge also. Even if you are wrong, even if his own people are wrong, he will do the righteous judgment only. समझ आया? बाकी जैसा लोगों को दंड मिला वैसे ही हमको भी दंड, क्योंकि he is righteous. समझ आया? So that is theology of God. Ethical and social justice. Of course, there will be injustice for personal life and in a social life, but God will do justice. Eschatology. There is a hope for deliverance, salvation. What is meant by eschatology? End days, for future. So in this psalm we can come across these 4 points: anthropology, theology of God, ethics and eschatology. ये सब मैटर आप लोग बड़े बड़े कलीसिया में जाकर प्रचार करने के समय बोला तो है ना, फिर वहां का लोग सोचेगा इतना बुद्धिमान और कहाँ पे भी नहीं है. समझ आया? इसलिए ये सब बातें हम पढ़ के जा रहे हैं. इसलिए मैंने बोला मेक शॉर्ट नोट्स, राइट इट देयर एंड कीप इट देयर. उपयोग होगा. This psalm is used in the Jewish and Christian traditions in a both way. When they go through persecutions, when they go through opposition from the other nation, from the other community, and when people are going away from faith, mostly in this kind of situation, Christian community and Jewish community इस भजन संगीताओं को याद करते थे, या इस भजन संगीता लेकर प्रार्थना या प्रचार करते थे. क्यों? सेम कॉन्टेक्स्ट है. सताव की वजह से लोग विश्वास को छोड़ के चले जा रहा है. देन लिटरेरी एंड थियोलॉजिकल पैरेलल्स. वी कैन कनेक्ट इट विद जेनेसिस 6 नंबर 5. जेनेसिस चैप्टर 6 नंबर 5 देखने का जरूरत नहीं. विकनेस एंड ह्यूमन करप्शन किसका समय है वहां? देन आइसाया 59 1 to 8. परमेश्वर का खुद का लोग खुद को लूटता है. The own people, own community are looting own community. समझ आया? खुद को लूटने के समय वो आइसाया में. प्रोवर्ब्स 1 का 7.
बुद्धि और मूर्ख का बीच में तुलना किया है, इधर भी किया है। बुद्धिमान अंत तक विश्वास में बने रहेगा, फूल बीच में जोड़ के डिने करेगा। रोमन्स 3 वर्स 10 to 8। पौलुस ने इस वचन संहिता को यूज करते हुए डिप्रेविटी, जो लोग विश्वास को छोड़ के चले जाएगा, उनको समझाने वाला कुछ बात है। रोमियो का पत्री 10:3 का 10 से लेकर 18 तक लिखा है, बाद में पढ़ के देखना। पढ़ेगा नहीं मुझे पता है, पढ़ के देखा तो आपका अच्छा है। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन एंड रेलेवेंस। In today's context, we can take this psalm and preach to your community in a good manner. Why? Because today's context, many people are coming to Christianity by thinking पैसा मिलेगा, कार मिलेगा, पैसा में सेटलमेंट होगा, ये होगा। Bible never says this kind of a gospel. बाइबल में कहाँ पे भी नहीं लिखा, but some people are preaching this gospel, isn't it? There are many preachers those are preaching, come you will get, but what gospel message says, come you will lose। वही है ना, सुसमाचार का संदेश ये है, आओ बहुत खोना पड़ेगा। बहुत प्रचारक लोग का आज का प्रचार है, आओ बहुत, कौन सा संदेश करेक्ट है बाइबल के अनुसार? बाइबल के अनुसार क्या है? आओ तो आया तो बहुत छोड़ना पड़ेगा। वो प्रचार किया तो कौन आएगा? वो प्रचार सुनकर जो लोग आया, दे आर नॉट फूल, दे अंडरस्टूड द कॉवेनेंट रिलेशनशिप। सो हियर एंथ्रोपोलॉजी हमने देखा, सो ह्यूमन बीइंग एंड गॉड दे वर कनेक्टेड टुगेदर इन द बुक ऑफ जेनेसिस। हमने प्रचार करने के समय यही बोलते हैं ना, रिश्ता टूट गया, रिश्ता को मेल मिलाप करने के लिए हमारा प्रचार चलता है। हाँ, सुसमाचार बताता है। सो इंसान खोए हुए इंसान को परमेश्वर से फिर रिकंसाइल करने के लिए ही वी प्रीच। इन दैट वे कुछ मिला या नहीं मिला, हमको रिश्ता मिल गया तो समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो कभी भी जाकर मिलेगा करके प्रचार मत करना। मिला तो गवाही बताना, वो अलग है। मिला तो गवाही बताने का अलग है, प्रचार में हर समय में ये बोलना गलत है। सो कंक्लूजन ऊपर दी हुई बातों को कंक्लूड किया है। एनी डाउट?